Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning to all. Morning, ma'am. So, Yes, ma'am. share you. Yes, Priyanka, slides are visible. Priyanka, presentation. Yes, ma'am. Now it's Now, I'm audible. yes, now you are audible. Start. Yes. I eyeball is a chief apparatus for vision. Eyeball is ectomesodermally developed, where conjunctiva, cornea, iris, and lens and retina are ectodermal, and rest structures are mesodermally developed. The bony cavity which accommodates eyeball is known as orbit, or we can say it as eye orbit. The cavity is formed by four bones: lacrimal, frontal, malar, and sphenoid bones. The rim of cavity is formed by three bones: frontal, lacrimal, malar bones. Now we come on eyelids, or technical term is palpebra. There are three eyelids in the eye. Upper eyelid is functional, lower eyelid is non-functional, inner eyelid is vestigial and also known as nictitating membrane. Upper eyelid carries striated voluntary muscles, orbicularis oculi. It is depressor muscle and is the fastest muscle of our body. The second muscle is levator palpebrae. It is elevator muscle and it is the second fastest muscle of our body. The margin of both eyelids carries hair, and these hair are the hardest hair of our body. This is the diagram. In this, this is upper eyelid, lower eyelid, and this is nictitating membrane. Both upper eyelid is functional, and second lower eyelid is non-functional, and both the eyelids carries the hair. Now we come on conjunctiva. It is stratified, non-keratinized squamous epithelium. It is highly vascular and ectodermally developed. It lines the eyelid as palpebral conjunctiva and goes over the frontal part of eyeball as bulbar conjunctiva, which makes our eyeball watertight. This is the diagram of conjunctiva. This thin layer, thin line,
and this continues with our eyelid and make our eyeball watertight. Layers of eyeball, sclera, sclera. Second name is tunica fibrosum. It is external layer is composed of dense connective tissue and is called sclera. The anterior portion of this, which is transparent, cornea is colorless, transparent, and avascular. Cornea carries only pain receptors. Sclera is connected to bones of eye orbit by means of seven muscles: superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, superior obliquus, inferior obliquus, and retractor oculi. Inferior rectus, medial rectus, inferior obliquus, and retractor oculi are controlled by oculomotor nerve, which is motor in nature. Superior obliquus muscle is controlled by trochlear, which is also motor. The lateral rectus, um, the lateral rectus is controlled by abducent nerve, which is mixed in nature. The recti muscle helps in axial movement of eyeball, whereas oblique muscles are responsible for rotatory movement of eyeball. Retractor oculi insert at the posterior wall of the eyeball. Mhm. In between cornea and sclera, there is a sclerocorneal junction, which accommodates a circular groove known as limbus. Here, in this junction, limbus carries a wider vein as canal or schlemm to help absorb the aqueous humor. Aqueous humor is described in later slides. Now we come on choroid. It is middle layer. Choroid layer is thin over posterior two-thirds of eyeball, but thick at the anterior part and forms ciliary body. Iris is pigmented and colored structure. The ciliary body itself continues forward to form a pigment and opaque structure, the iris, which is visible colored portion of eye. Eyeball contain a transparent crystalline lens which is held in place by ligament attached to ciliary body. In front of lens, a aperture is surrounded by iris is called the pupil. Diameter of pupil is regulated by the muscle fiber of iris. The, the muscle of iris regulate the amount of light entering into eyeball involuntarily. The synaptic nerve, the sympathetic nerve um, act as a mydriasis, dilation of pupil, so that more amount of light can enter our eye. Whereas parasympathetic nerve um, causes meiosis, constriction of pupil, so that less amount or when bright light, so less amount of light can enter our eye, so it can protect our retina. Ciliary epithelium secretes aqueous humor, which is absorbed by canal of Schlemm. This is sclera, which is thinner at the posterior, but anterior it becomes thick, and this is the iris, which is the color portion of our eye. Now we come on retina. It is the inner layer. It is the inner layer of three of them. It contains three layers, that is ganglion cells. The axon of these cells together form the optic nerve. Second is bipolar cells found in between photoreceptor cells and ganglionated neurons. Third is the photoreceptor cells that we all know, that is rods and cones. This is the diagram in which we can see ganglion cells. These are bipolar cells and rods are at the last push. Rods and cones.
Here is a slight differentiation between rods and cones. Rods gives us twilight vision, or we can say vision in dim light, or less amount of light is present. Photopigment present in rods is rhodopsin, which we can also call as visual purple. It is responsible for black and white vision. Rods are more sensitive, almost 1,000 times more sensitive than cones. We can also say that it has low threshold value. Rods are almost 11.5 crores in the number, whereas as we come on cones, this is daylight vision or vision in bright light. Photopigment present in cones is for iodopsin or visual violet. It is responsible for colored vision. It is less sensitive, or we can also say that this has high threshold value, and its number is also less, about 6 lakhs per eye. Eye also has a blind spot. It is a spot where the optic nerve leaves the eye. Photoreceptor cells are not present in this region, hence it is called blind spot, or we can't see any image, or any image is not formed here. Fovea, it is the visual clarity. It is the visual accuracy is the greatest here, or we can say this is the point of clearest vision. Here the fovea and blind, and here the optic disc exit the eye. There are two chambers in our eye. There is aqueous chamber and vitreous chamber. It is a space between cornea and lens. It contains thin watery fluid called aqueous humor, produced by ciliary epithelium that I mentioned in the previous slide, and absorbed by canal of Schlemm in limbus. Second one is vitreous chamber, space between lens and retina. It is filled with transparent gel called vitreous humor. Here, this is the vitreous chamber, and is filled with vitreous humor. And this is aqueous chamber, and here aqueous humor is filled. Glands in our eye, lacrimal or tear glands, almond-shaped glands, and are also they are modified sweat glands. Tear helps to keep our conjunctiva, cornea moist, and also protect from dirt and germs. The tear comes out of gland through several lacrimal channels and spread over bulbar part of conjunctiva. The blinking action of our eyelids spread this fluid in whole part of our eye, and absorbed by nasolacrimal sac of nose. Tears helps to keep our conjunctiva, cornea moist. They also help to protect same from dirt and germs. Second comes the tarsal gland, or second name I can't mention here, is a meibomian gland. It is modified sebaceous gland located at the base of the eyelashes. Here I depicted a picture. This is lacrimal gland, and it has many ducts. This is meibomian gland, and this is the nasolacrimal sac, and it has two ducts, or we can say canals. Here's my PPT is over. Thank you. आरती देवी, आरती। यस मैम। हाँ, लीव क्यों कर दिया था बीच में? मैम वो कनेक्शन कट गया था तो फिर से मैं रिजॉइन कर लिया था। अच्छा, और नितिन आर यू हियर? यस मैम। ठीक है,
देखो क्या है, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे का भी सुनना है। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा 5-6 लोगों ने बीच में लीव किया, तो ऑल द थिंग्स आर फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने ये भी सीखना है कि देखो प्रियंका ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया है। और हमें प्रेजेंटेशन का एक जो टेक्निक दैट हैज टू बी डेवलप, क्योंकि जैसे उस दिन किसने पूछा था, अंकित ने पूछा था, सर से पूछा था, डीन सर से पूछा था कि क्या स्कोप है वेटरनरी का, क्या स्कोप है। तो एक तो ये भी है, जैसे अब कई बच्चों की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं होती है, वो चाहते बीबीएससी के बाद ही सीधा जॉब करें, बीबीएससी के सब बाद सीधे जॉब करना है, स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो पीजी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। जिन्हें नहीं मिल पा रही स्कॉलरशिप तो वो क्या करें, वो बेरोजगार तो बैठेंगे नहीं ना, वो भी तो कुछ करेंगे। तो ऐसे ही आप में पर्सनालिटी डेवलप है, क्यों बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट हैचरीज हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं स्टूडेंट्स को। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मैं Ma'am, you are not audible. हाँ, कनेक्शन वाज लॉस्ट। अब आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. बीच में कनेक्शन Yes. हाँ, वो बारिश की वजह से सभी जगह कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये है कि एज सच आपको होल पर्सनालिटी डेवलप करना है। इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग की। नितिन, आप हिंदी मीडियम से, वो लगता है ना? No, ma'am, English medium, but हाँ, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। इंग्लिश मीडियम है मेरा, बट हिंदी मेरी ज्यादा स्ट्रांग है। बट मैं इंग्लिश हाँ, मीडियम से हूँ मैं पूरा, पर मेरी हाँ, हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट था मैं शुरू से, तो मैं हिंदी काफी स्ट्रांग हो गई थी। कई सारे कंपटीशन में भाग लेता रहा हूँ हिंदी के, तो इसका हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है एक्सटेम्पोर मेरी। है, क्विज। अच्छा अच्छा, आपने एक्सटेम्पोर और ये डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट लेते होंगे, है ना? यस मैम, मैं कई सारे में दे चुका हूँ स्कूल में। अच्छा, है कि अब आप लोग प्रोफेशनल कॉलेज में आ गए हैं सभी, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। देखो अपन हिंदी डिस्करेज नहीं करेंगे, हिंदी आना अपने आप, मतलब वो एक लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज है, तो वो तो आएगी, ये तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं हिंदी तो आएगी ही आएगी। हिंदी क्यों नहीं आएगी? बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया। और इवन एमपी के बहुत सारे बच्चे हैं तो हिंदी आनी ही आनी है। बट अब आपको, जिनको बच्चों को इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम है, दे मस्ट बी फ्लुएंट इन, ठीक है ना, रूटीन लैंग्वेज में, रूटीन टॉकिंग। आप कम से कम ये है कि जितनी भी एक्सटेम्पोर हैं, ये दे ऑल ऑर्गेनाइज इन वन पार्ट। हिंदी में ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं होंगे, बट इंग्लिश भी उसमें ऑप्शन रहता है, और इंग्लिश कभी इनकरेज किया जाता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल कॉलेज में हैं अभी यहाँ पर। अब हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि वन बाय वन मैं ऐसे टॉपिक दूंगी जो आप लोगों ने जैसे नीट में पढ़े हुए हैं, दूंगी आप लोगों को बीच बीच में, ठीक है। सो सभी को दिख रहा है? स्क्रीन
यस मैम। यस मैम। हाँ, दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अपने जो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, of I, things of I by diagram. Now it is the time to perceive the original thing. Whole eyeball is look like, and we can ask in your practical examination also if the condition may not be, maybe. So I may conduct the practical examination by spotting like this. Means I can, like you see, here you are seeing this diagram. So I will make 1, 2, 3, 4, 5, and you have to write about what is I have marked to 1, I have marked to 2, 3, 4. So anatomy spotting may also be conducted like this. So you must be prepared. और जो समझ में नहीं आ रहा है वो frankly पूछना है, ठीक है? So first we revise what we have learned in yesterday class. This one, what is this structure? Prakhar Tiwari. Yes ma'am. Yes. Now you see the slide and this arrow. So what is this structure? Iris ma'am. ये स्ट्रक्चर, ये इसमें देख सकते हो, ये यहाँ पर उसी को ही मार्क करके ये एरो बनाया है। हाँ, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? मैम पीपल और आइस एग्जैक्ट नहीं क्लियर हो रहा है। आइरिस नहीं आइरिस नहीं है। किस ले? यस, कॉर्निया। यस, दिस वन इज कॉर्निया, ठीक है ना? ये कॉर्निया है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि ये अभी पूरा उठाया नहीं है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? ये व्हाइट कलर का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। जिसको पूछो अभी वो बताएगा। प्रदीप आप बताओ, ये क्या है? ये व्हाइट स्ट्रक्चर कॉर्ड जैसा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैष्णवी, दो वैष्णवी हैं, वैष्णवी है ये। कोई भी वैष्णवी बताओ भाई, दो वैष्णवी हैं। अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। यस मैम। ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये दिस वन स्ट्रक्चर। क्लेरा पोर्शन, नहीं सिरेटस मसल मैम, सिरेटस मसल। ये क्या है? ये कौन सा पोर्शन है? ये स्क्लेरा का है। स्क्लेरा, दिस इज स्क्लेरा, ठीक है ना? हाँ, ये स्क्लेरा एंड दिस इज कॉर्निया। तो बताओ, जैसे हम पढ़ते हैं, देयर आर 3 ट्यूनिक्स इन द आई वॉल, फाइब्रस ट्यूनिक, वस्कुलर ट्यूनिक एंड नर्वस ट्यूनिक। देयर आर 3 ट्यूनिक्स ना? यस मैम। Fibrous, vascular and nervous. We say the cornea is originated here. Cornea is the part of which tunic? Fibrous. Don't know ma'am. Yes, it is the part of fibrous tunic. Cornea is the cranial extension of sclera. But region of cornea, from which germ layers cornea originated? शान बताएगा। शान रघुवंशी नाम है, क्या नाम है? Yes ma'am. अभी देखो, अभी प्रियंका ने प्रेजेंट किया तो उसने सारा बताया था कि फ्रॉम विच जर्म लेयर ऑल द पार्ट ऑफ आई हैज डिराइव्ड। तब उसने अभी एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड पार्ट्स आई के वो भी डिनोट किए थे। नाउ यू टेल मी, द कॉर्निया हैज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर? Endodermal. व्हाट? एंडोडर्मल। मैम मेसोडर्मल। क्लियर नहीं है मैम मुझे। क्लियर नहीं है? अभी प्रियंका प्रेजेंट की थी, तब आपने ध्यान से देखा था उसने कौन सी 2 जर्म लेयर्स की चर्चा की थी? सुना था बट अभी याद नहीं आ रहा है। ध्यान से आपने प्रेजेंटेशन सुना नहीं, लाइटली ले लिया प्रियंका का प्रेजेंटेशन। नो मैम, सुना था ध्यान से। मैम एक्टोडर्मल। मैम मेसोडर्मल। बिल्कुल, एक्टोडर्मल।
Sclera is mesodermal. However, its cranial extension, which is the cornea, is ectodermal. Sclera is mesodermal. However, its cranial extension, cornea, is derived from ectoderm. ठीक है, तो याद रखना है, cornea is ectodermal, conjunctiva is ectodermal, lens is ectodermal, iris muscle. अच्छा ये बोलते ना, है ना, the body developed from mesoderm except the muscle of iris which derived from ectoderm. सुना होगा ये आप लोगों ने? मैम सिलियरी बॉडी भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है. Yes, ciliary body is also. Ciliary body is not, I think. इसने लिखा है प्रियंका ने शायद ciliary body is ectodermal. हाँ. Mesodermal. Yes, ciliary body. iris होता है ectodermal में. Ma'am, iris is ectodermal, but ciliary body is mesodermal. नहीं, as such iris is also not, I think, ectodermal. Muscles of the iris is ectodermal. As such iris is also not ectodermal. Muscles of iris is ectodermal. I will make it clear. Just give me some time. I will make it clear. ठीक है? Ciliary body are which part of tunic? किस part के हैं ये? मतलब means from which part of tunic they are the extension? Iris. Vascular tunic. Vascular tunic. Yes, Yadram, right. They are the extension of vascular tunic. Means choroid. There are three tunic: sclera, choroid, and retina. So you say here, जैसे हम ये देख पा रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं ना? This sclera is originated mesodermally. This cornea is originated ectodermally. अब हमने इसको खोला, इसको बीच से कट कर दिया है. ये पीछे वाला हाफ है, ये आगे वाला हाफ है. यहाँ से देखेंगे तो we are seeing here the ciliary body. We are seeing over here the ciliary body. ठीक है ना? Basically, it is the extension of choroid. It is the extension of choroid. ठीक है? Or we can say vascular tunic. ठीक? So ciliary body, iris, they are the extension of this choroid. ठीक? Now, next diagram. इस डायग्राम पे आते हैं हम. एक्चुअली ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना. दिस डायग्राम, ठीक है, राइट? अभी प्रियंका प्रेजेंट की थी तो उसमें रेटिना का एक्सटेंट यहाँ तक दिखाया था, इतना एक्सटेंट रेटिना का लिया हुआ था. नाउ यू सी दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द आई एंड यू सी द रेटिना इज एक्सटेंडिंग अप टू हियर. ठीक है ना? एंड द जंक्शन ऑफ रेटिना एट द लेवल ऑफ सिलियरी बॉडी ओवर हियर इज सेरेटेड, है ना? यहाँ पर मार्जिन जो रेटिना का होगा दैट इज सेरेटेड, दैट इज कॉल्ड ओरा सेरेटा. दैट इज कॉल्ड ओरा सेरेटा. ठीक है ना? मतलब अगर अपन इसको 3D इमेजिन करें, ये वन हाफ देख रहे हैं, उधर से दूसरा हाफ आएगा, तो यहाँ पर एक जो है बॉल लाइक अपीयरेंस होगा. ठीक है? जैसे ये मेरा ये हाथ है, ठीक है? तो ये रेटिना ये पूरा कवर कर रहा है आई बॉल का, और आगे से आके सेरेशंस बनेंगे. ठीक है? These serration will fit over that here over the ciliary body portion. Over here this margin will be termed as ora serrata. तो मतलब रेटिना क्या है कि लेवल यहाँ तक लेवल आएगा, मतलब जहां तक आगे पीछे इधर से सिलियरी बॉडी है, तो सिलियरी बॉडी से यहाँ पर ये ओरा सेरेटा के थ्रू ये this will be terminated over here. So this is the extent of retina. समझ में आ रहा होगा कि इट इज एक्सटेंडिंग अप टू दिस लेवल. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, कौन बताएगा? जयंत बताएगा. जयंत, आर यू हियरिंग मी? यस जयंत, नाउ यू टेल मी अबाउट दिस एरिया. व्हाट इज दिस एरिया? This bluish greenish area, yes. What is the name of this area? That area is around the optic disc, so retina. Retina. Jayant, कल क्लास अटेंड की थी? You attended my class, yesterday's class?
I'm still having internet problems, ma'am. Sometimes I miss here and there. Okay. Means you saw this diagram when I Yes, discussed ma'am. yesterday. Huh? Yes, ma'am. Means in whole discussion which was carried out yesterday, I point out some terms, one specific term which is present in animals, i.e. what is that term? Green is clear layer. I am giving hint to you. I am giving hints. What is the name of this green is clear layer? Tapetum. Tapetum, ma'am. What? Tapetum. Your voice is not. Hello? Hello? You speak? Yes. Hello? हाँ. Can you hear me, ma'am? Yes, Tapetum. बोलो. Tapetum. Huh? Tapetum. Tapetum. T-A-P-E. Yes, ma'am. My pronunciations are weird. Okay. Pronunciation is actually problem. Yeah. It is written over here. You see here it is written tapetum. It is tapetum lucidum. Yeah. I It is tend to have tapetum lucidum. I tend Yes, to have problem with pronunciations because of the accent. I think human has the great Yeah, learning but power. Yes, we no, have the ma'am. great learning But power. You must learn the things. And I think this term is very popular, tapetum lucidum. If you see in, I think Google also, the pronunciation you can be correct from there also. Right? It is yes, ma'am. tapetum lucidum. Okay. You must learn. You must learn. Yes, ma'am. I will. So, okay, this is tapetum lucidum. What is the function of Jayanth? Function of tapetum, Jayanth? Any importance of tapetum? Jayanth, I am asking to you. Yes, ma'am. It's a reflective Any layer. It's a reflective reflective layer, very layer, good. so it helps shine in the dark, like helps them see in the dark for animals like cats. Yes, it shines in dark. Yes. Why does eyes of animal shines in dark? This is because of this tapetum layer. Yes, right. Any other importance which I told you yesterday? कुछ और? I don't remember, ma'am. Reflective layer, as you said, it is a reflective layer. Means in why the animal can walk in dark. They utilize very dim light. By again the light which is falling to this layer, it is again reflecting the light to the retina. Right? कैसे भाई how the vision is generated? The rays of light, they passes and fall into the retina where the rod and cone cell perceive, right? Yes, ma'am. So here these cell from this retina, the light will absorb by the choroid, and black is the very good absorber. So in normal condition, this choroid has absorbed the light, but this tapetum lucidum is greenish clear layer. This again reflect the light over to the cells of retina, where it is again perceived. Means a small amount of light is again it is reflected and it is utilized. Right? Yes. I think now you understand. Mm-hmm. Tapetum. No, this is this layer, very creamish layer, which is pulling out. That is the retina. Yes, of course, it is written. It is written in the box. It is retina. Very delicate membrane. Yes, it is retina. Retina, which is very delicate membrane attached over here. And when you peel out the retina, you can visualize the choroid. The retina, when you peel out the retina, then only you can visualize the choroid, right? Yes, ma'am. Okay. Now, Ankit Mishra. अंकित, हाँ अंकित, मेरी आवाज आ रही है?
अंकित, अंकित आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है अंकित। अनिमेश, अनिमेश सिंह तोमर, अनिमेश, अनिमेश आवाज आ रही है क्या? अरे भैया तो सॉन्ग के रूप में आवाज आ रही है एकदम। वाह। आरती, आरती आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ आरती, चलो किसी को आवाज तो आई। ठीक। आरती, व्हाट इज द प्यूपिल? प्यूपिल क्या है? व्हाट इज द प्यूपिल? प्लेन मैम, मैम इट इज, मतलब मैम ये मैनेज करता है लाइट कितनी इंटर होगी, मतलब ये उसको लाइट इंटरिंग को मैनेज करता है। क्या है? मैम ये लाइट इंटरिंग क्या मतलब बोल रही हो कितनी आप? लाइट आईज में इंटर होगी। होगी हाँ। मैम कितनी लाइट आईज में इंटर होगी, ये उसको कंट्रैक्ट होगा या फिर डायलेट होगा, उसके हिसाब से आई में इंटर होती है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ ये डायग्राम देख रही हो आप? डायग्राम दिख रहा है ये? यस मैम। ये अपर्चर दिख रहा है? दिस इज एक्चुअली अपर्चर। यस ये मैम। छेद है, ये होल है। दिस अपर्चर इज द प्यूपिल एक्चुअली। ठीक है ना? व्हाट इज Yes, दिस ma'am. अपर्चर? दिस इज अपर्चर इज प्यूपिल एंड cranial to this aperture is cornea. जैसे लिखा ना, इसमें लिखा देखो cornea through pupil लिखा हुआ है। Yes, ma'am. The cornea through pupil because this is we are seeing here the posterior aspect, मतलब अपन आई को खोल के बाहर अंदर से देख रहे हैं। ठीक है, आई को खोला हुआ है और हम अंदर से देख रहे हैं। ये इस तरफ क्या है? लेंस है। हमने कहाँ से खोला हुआ है? इधर से खोला हुआ है, इधर से कट लगाया। तो here is the lens. This is what? This is iris. लेंस की आगे तरफ आइरिस आएगा ना? Yes, ma'am. ठीक है ना? This is what? Ciliary body. Yes, This ma'am. is what? Ciliary body. And here is the pupil. And pupil is wholly covered by the cornea. जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो this is cornea. ये पूरा का पूरा क्या है? cornea है और ये स्क्लेरा है। अब जैसे आप अपनी आंख में देखोगे या आप अपनी आंख में जो व्हाइट पार्ट देख पा रहे हो वो क्या है? eyeball. In your eyeball you are seeing the white part. What it is? Sclera. मैम Yes, स्क्लेरा। white part क्या है? स्क्लेरा। हाँ हाँ, मैम स्क्लेरा। मैम स्क्लेरा है। हाँ आरती है। हाँ मैम बिल्कुल सही, स्क्लेरा। वो स्क्लेरा है, व्हाइट पार्ट। फिर आप स्क्लेरा, स्क्लेरा ठीक, बिल्कुल सही, स्क्लेरा। हर्षित, हर्षित। यस मैम। हाँ हर्षित। यस मैम। हाँ आप मेरे को ये बताओ, जो हम अपनी आईज में देखेंगे लाइकवाइज, ठीक है, सी फ्रॉम आवर आईज व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया को कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर आप अपनी आई में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो? देख रहे हो, अपनी आंख देख रहे हो तो एक व्हाइट पार्ट दिखता है ना? यस मैम। व्हाइट हाँ। पार्ट हेलो कॉर्निया को रिप्रेजेंट करेगा। मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ हर्षित बोलो। एंटीरियर पार्ट मैम। एंटीरियर पार्ट। हाँ एंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं, या वो पार्ट जैसे व्हाइट के बाद जो एरिया आपका स्टार्ट हो रहा है, ब्लैक एरिया, वो ब्लैक क्यों दिख रहा है? बिकॉज कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट।
एंड ट्रांसपेरेंट। यू आर सेइंग ट्रांसपेरेंट है, तो वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए आप क्या देख रहे हो, आयरिस देख रहे हो आप, है ना? यस आप मैम। क्या देख रहे हो, आयरिस देख रहे हो उस तरफ से। बात समझ में आ रही मेरी? तो दैट इज यस व्हाई मैम। यू वो जो अपन बोलते हैं ना कलर ऑफ आई, ब्लू, ब्लैक, ठीक है ना, वाइट, जो भी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। सो दैट एरिया जो आप ब्लैक एरिया या आप बोले जो एरिया व्हाइट के बाद जो बोलते हैं, दैट एरिया इज रिप्रेजेंटिंग, ट्रांसपेरेंट लेयर इज रिप्रेजेंटिंग कॉर्निया। तो मतलब कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन समझ में आया यस आपको? मैम। वॉल में आए, है ना? इतना पोर्शन कॉर्निया का है, कॉर्निया कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, एंड देन आफ्टर व्हाइट पोर्शन इज ऑफ, ठीक है, and cornea you cannot see the color of cornea, cornea is transparent, that is why you are seeing the color of iris, इसलिए पीछे से iris का कलर देख पा रहे हो आप, ठीक? ये दिस इज द लेंस, लेंस इज ओपेक, ठीक है? अब लेंस अगर ये व्यू मैंने रख दिया और मैं है ये वाला पार्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे इसको? भाई ये कट, ये सेक्शन है आई का, ये सेक्शन है, ठीक है ना? जैसे अभी हमने ये कर्सर दिख रहा है, कर्सर, हाँ ये कर्सर मैंने रखा हुआ है, हाँ, इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे? ये लेंस के चारों तरफ, और हम ये पीछे से देख रहे हैं, हम आगे से नहीं देख रहे हैं, ये पीछे से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से ये जो पार्ट होगा वो किसका, ये क्या होगा? आइरिस। आइरिस नहीं होगा, ये सीलियरी बॉडी होगा, ठीक है? पीछे से अगर अपन, क्योंकि देखो बॉडी में बड़ा कंफ्यूजन, लेकिन उतने ही एरिया में सब कुछ आ जाना है, कैसे? देखो ये ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन, ये डायग्राम ध्यान से देखना, चीज क्या है, ये लेंस है, ये जो सेरेसन्स दिख रहे हैं, ये सेरेसन्स दिख रहे हैं ना, ये किसके हैं? ये सेरेसन्स, ये सीलियरी बॉडी के सेरेसन्स हैं, और फिर सीलियरी बॉडी के ही के अंदर तरफ एक और लेयर है नीचे साइड, सीलियरी बॉडी। अच्छा, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं? अश्विनी बताएगा, अश्विनी, सस्पेंसरी लिगामेंट। अश्विनी, आर यू हियरिंग मी? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर वो मतलब जानबूझ के ये हो रहा है। मैम एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ ही रहा है। हाँ हो रहा है, आज बारिश के कारण सभी जगह हो रहा है। अच्छा, गणेश आ गया वापस, गणेश, गणेश, गणेश आवाज आ रही है? गणेश नहीं आ रही आवाज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर किसी दिन पूछेंगे, फिर ध्यान से, इसलिए देखो पूछने से क्या है, आप लोग थोड़े अलर्ट हो जाते हो कि हाँ नहीं ये हमसे नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा आप और उसको अच्छे से देखते हो। दैट इज वाई मैंने मतलब थोड़ा आप लोगों से पूछा कि आप थोड़े अलर्ट रहें, ऐसे नहीं कि मैडम बताते जा रही हैं आप सुनते जा रहे हैं बस। पोजीशन, ठीक है ना? सस्पेंसरी लिगामेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीलियरी बॉडी एंड दे कनेक्ट और होल्ड द लेंस, ठीक है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इसकी अपर जो ये लेंस का जो भी शेप है, द शेप ऑफ द लेंस इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस, ठीक है? अब आपने सीलियरी बॉडी देख लिया, आपने आइरिस देख लिया, लेंस देख लिया, ठीक है? अब उसके बाद मसल्स ऑफ आई बॉल, और ये 7 मसल्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है? Remember all the 7 muscles. Actually, all the 7 muscles they arise from the all around this optic nerve, ठीक है ना? Muscles originated at the level of optic nerve, insert over the, ये सब की सब कहाँ इंसर्ट हो रही है?
मसल्स हैं, 2 ऑब्लिक मसल्स, 4 + 2 6 and 1 retractor muscle. ठीक, so there are 7 muscles in eyeball. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ बोलो बोलो मैम, मसल से फिर रिपीट कर दीजिए, आवाज आपकी कट गई थी। फिर से आवाज कट रही थी। ठीक, there are 7 muscles of eyeball, 7 muscles in which 4 are rectus. rectus का मतलब होता है straight, straight fibers. ठीक, rectus, oblique, I'm unable to hear you. हाँ बच्चों, कनेक्शन चला गया था। अब आ रही है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, अब there are 4 rectus muscle. 4 rectus आपने कैसे याद रखना है? एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस ऊपर, इंफीरियर रेक्टस नीचे, मीडियल रेक्टस, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो जैसे इसमें देखो, दिस वन इज इंफीरियर रेक्टस मसल, रेक्टस मसल, फिर ये रेक्टस मसल है, और ये कट टेंडन है किसका? लेटरल रेक्टस मसल का। ये लेटरल रेक्टस, और उस तरफ होगी कौन सी? मीडियल रेक्टस। बात समझ में आ रही? लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस है। ये क्या उल्टा होगा? मीडियल रेक्टस होगी, वो आई बॉल को ऊपर की तरफ ले जाएगी। कैसा है? उल्टा है। सुपीरियर ऊपर नहीं उठाएगा, सुपीरियर नीचे ले जाएगा, इंफीरियर ऊपर ले जाएगा। याद रखना ये चीज, एक्शन इनका उल्टा है। ठीक, तो ये 4 मसल्स हुई। जैसे आप आई बॉल अपना घुमाते हो, करते हैं, आई बॉल ऊपर ले गए, फिर आई बॉल नीचे, आई बॉल दाएं, आई बॉल बाएं, फिर रोटेशन। देन आफ्टर रोटेशन ऑफ आई बॉल, रोटेशन किससे होगा? सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ आई बॉल। जो रोटेटरी करते हैं, आई बॉल घुमाएंगे, वो किससे घुमाते हैं? सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द रिट्रैक्टर ऑकुलाई मसल, रिट्रैक्टर। ठीक है, तो रिट्रैक्टर ऑकुलाई मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज सराउंडेड ऑल अराउंड द रिंग। ठीक है ना, ये लिखा है ना कॉमन टेंडिनस रिंग, तो जो ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रिट्रैक्टर ऑकुलाई। फिर ये डायग्राम देखो, ये एंटीरियर व्यू है जिसमें चारों दिखाई हुई है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। ठीक है, फिर ऑब्लिक भी दिखाया हुआ है, ये इंफीरियर ऑब्लिक है दिखाया हुआ है, और ये सुपीरियर ऑब्लिक को दिखाया हुआ है, और इसे मूवमेंट भी दिखाया हुआ है कि हाउ द मूवमेंट इज लेटरल एंड मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो थोड़ा आपने चीजों को याद रखना है। मेनली रोटेटरी मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ठीक, तो इतना समझ में आया 7 मसल्स ऑफ आई बॉल। अब इनका इनर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्रेनियल नर्व का, जैसे प्रियंका ने बताया अपने उसमें प्रेजेंटेशन में बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। जैसे उसने बताया था, सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज इनर्वेटेड बाय पैथेटिक नर्व, मसल इज इनर्वेटेड बाय पैथेटिक मसल, पैथेटिक नर्व। एक्चुअली पैथेटिक किसको बोलते हैं? ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर और पैथेटिक एक ही नाम है ना। तो मैंने कैसे याद रखा है कि जो सुपीरियर लोग हैं वो बड़े पैथेटिक होते हैं, उनकी कंडीशन बहुत पैथेटिक है। ठीक है ना, सुपीरियर पीपल आर पैथेटिक, इस टाइप से याद रखेंगे। एंड द मेजॉरिटी ऑफ मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑक्लूमोटार, क्योंकि ये मोटार नर्व्स, ये मसल्स क्या है? मसल्स का मेन यूटिलिटी क्या है? मोटार, मोटार एक्शन है। दीपक बताओ जरा, दीपक, दीपक मेरी आवाज आ रही है? दीपक, दीपक मेरी आवाज आ रही है आपको? किरण, किरण खट्टरकर, किरण नहीं आ रही आवाज।
Yes, ma'am. Hello. हाँ किरण, मेरे को ये Yes, बताओ, ma'am. तो हाँ ये पैथेटिक और ट्रोक्लियर नर्व है, ये किस टाइप की नर्व है? विच टाइप ऑफ, वेदर इट इज सेंसरी, मोटार और मिक्स्ड? ट्रोक्लियर और पैथेटिक नर्व is comprised of which nature? It is of which nature? बताओ भाई किरण। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? यस चलो मैम। बाद में पता कर लेना, ठीक है। मतलब मेरा यही है कि पढ़ना है इस चीज को, बड़े बड़े एम्फेसाइज करके पढ़ना है कि विच नर्व इज इनर्वेटिंग विच मसल ऑफ आई, ठीक है। जो 3 नर्व्स पढ़ी, पूरी क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम ने पूरा पढ़ा चुका है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स को बिल्कुल बोलते हैं ना कि पी जाओ, लाइकवाइज उस तरीके से आपने उसको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको बनना चाहिए क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड ही हैं, तो क्रेनियल नर्व्स पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली यहाँ बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर दूसरी नर्व कौन सी बताई थी? एब्ड्यूसेंट बताया था, एब्ड्यूसेंट। तो एब्ड्यूसेंट इज एब्ड्यूसेंट नर्व इनर्वेट द रेट्रैक्टर ओकुलाई एंड लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है ना। Lateral rectus and retractor oculi muscle innervated by abducent and rest of the muscles innervated by the oculomotor nerve, ठीक है। मतलब कितनी नर्व इनर्वेट कर रही हैं मसल्स ऑफ आईबॉल को? 3 nerves are innervating, oculomotor, ठीक है। One is oculomotor, another is trochlear or pathetic, then third one is abducent. 3 nerves are innervating the muscles of eyeball, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक चीज हुई, मसल्स ऑफ आईबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टू टर्म्स एक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एक होता है एक्सटर्पेशन ऑफ आईबॉल और एक होता है ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। एक्सटर्पेशन, EXTIRPAON, एक्सटर्पेशन। और दूसरा टर्म क्या होता है? ई न्यूक्लिएशन, NUCLEATION, enucleation and extirpation of eyeball, ठीक है। एनिमल्स में भी आई कैंसर बड़ा मतलब ठीक प्रकार से है, इसका भी एक मतलब काफी इंसिडेंस है। फर्स्ट ऑप्शन बचता है कि आई बॉल को रिमूव कर दो, ठीक है। तो अब भाई आई बॉल को रिमूव करना है तो कुछ प्रोटोकॉल तो होगा, ठीक है। तो उसमें नर्व ब्लॉक एक तो पढ़ने पड़ेंगे, सारे नर्व ब्लॉक आएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्टिक नर्व ब्लॉक करके बस नहीं काम चलेगा, हमने और भी नर्व ब्लॉक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी बात आएगी, ब्लॉक करने पड़ेंगे, वो अलग बात हो गई। और यहाँ हम बता रहे हैं कैसे मतलब आ जाएगा, ठीक। eyeball along has been removed, then it is called extirpation of eyeball. Only eyeball muscles are not cut down, then it is called enucleation. Then it is called enucleation. Means what is the difference between the two? Extirpation सब कुछ एक्स्ट्रा ऑकुलर, एक्स्ट्रा में EXTR लगा हुआ है ना। अच्छा, ये मसल्स ऑफ आई बॉल आर आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, इनको एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में इसीलिए उसमें EXTR लगा हुआ है। तो जिसमें EXTR लगा हुआ है मींस इन दैट वर्ड मसल्स आर आल्सो हैज बीन रिमूव्ड। वर्ड न्यू बॉल के लिए न्यूक्लियस वर्ड यूज किया है, और ई वर्ड जनरेशन मींस रिमूवल ऑफ eyeball, ठीक। So you have to remember बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमको लेक्राइमल एपरेटस, एक लेक्राइमल ग्लैंड बस नहीं बोलते इसको, पूरा लेक्राइमल एपरेटस बोला जाता है। दिस इज द लेक्राइमल एपरेटस। तो लेक्राइमल एपरेटस पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक। आवाज आ रही है मेरी?
यस मैम। आवाज क्लियर है ना? यस मैम क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो एक्सटर्बेशन और इन्यूबुलेशन सभी नोट डाउन कर लेना बुक में, भूल जाओगे बाद में, सॉरी कॉपी में। दिस इज द पोजीशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड, मींस कहां क्या पोजीशन है, सुपीरो एक तो ऊपर है और लेटरल। लेक्राइमल ग्लैंड इज सिचुएटेड सुपीरो लेटरल टू eyeball, है ना? तो इट इज सिचुएटेड सुपीरो लेटरल टू eyeball. From this lacrimal gland, multiple excretory duct बोला है, इसको lacrimal duct नहीं बोला है, याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, इसको lacrimal duct बोलेंगे, बोलने लगेंगे। ये lacrimal ducts नहीं है, they are called excretory duct, excretory duct बोला है, ठीक है ना? So these are the excretory duct which pour the secretion of lacrimal gland here, ठीक है, मतलब यहाँ अपर आईलिड के लेवल पे ये इसकी ओपनिंग होगा। Secretion come through the flow to up to here. Here is the presence of lacrimalis. देखते हैं तो अपन medial canthus में जाएंगे। This is called medial canthus of eye. This is called lateral canthus of eye. Canthus वर्ड याद होना चाहिए आपको। Medial canthus of eye. This is called lateral canthus of eye. When we see our medial canthus, in the medial canthus one structure is visible over here, वो अलग है थर्ड आईलिड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इस तरफ एक करंकला है, करंकला मतलब जैसे एक उठा हुआ, so that is called lacrimalis. So caruncular lacrimalis present over here, lacrimalis is also over here, means the secretion is come over here, पहले सारा secretion यहाँ आ गया, यहाँ accumulate हो गया थ्रू पंक्टा लेक्राइमेलिस। पंक्टा क्या है? पंक्टा मींस पंक्चर, मतलब बहुत सारी, ये क्या है पंक्टा क्या है, ये अपर्चर्स हैं, दीज आर द अपर्चर्स, होल्स। पंक्टा लेक्राइमेलिस आर होल्स फ्रॉम हियर एंड दीज टू आर द लेक्राइमल कॉल्ड लेक्राइमल कैनाल बोलते हैं एक्चुअली इसको, लेक्राइमल कैनाल और लेक्राइमल डक्ट, ठीक है, इन दोनों को duct. These two lacrimal ducts, the secretion is come through the nasolacrimal duct to the nasolacrimal duct. Structure यहाँ पर होगा, देखो बन रहा है यहाँ पर, tear is formation, tear formation taken over here, it is coming to this here and coming to the medial canthus of the eye where puncta lacrimalis is there. This puncta lacrimalis of tear, it regulate the flow of tear. Flow of tear मतलब ज्यादा टीयर भरेगा तो एक तो आंख से बाहर आता है पानी, आंख आप देखा होता है कि नाक से भी बहने लगता है, तो थ्रू ईयर थ्रू दी, तो इधर कहाँ से पहुंचा नेजोलेक्राइमल डक्ट तक, टीयर कैसे पहुंचेगा, दैट इज थ्रू दिस लेक्राइमल कैनाल और लेक्राइमल डक्ट open into the nasolacrimal duct, and this nasolacrimal duct opens in the of near, हमारे नेयर्स हैं उसके एक्सटर्नल वॉल की तरफ दिस ओपनिंग विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो घोष में भी लिखा हुआ है लेक्राइमल एपरेटस के बारे में, आप लोग अभी पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछ लेना। आज क्या, आज फ्राइडे है क्या? हाँ आज फ्राइडे है। यस मैम। मतलब आपको लेक्राइमल एपरेटस समझ में आया कि नहीं आया? Yes, बच्चों बताओ, लेक्राइमल एपरेटस समझ में आया? यस मैम आ गया। हम प्रॉपर नहीं है। हाँ मैम बहुत क्लियर नहीं हुआ बट आ गया समथिंग 50%। हाँ देखो क्या है, देखो ग्लैंड यहाँ पर सिचुएटेड है भाई, टीयर क्या है, एक तो आंख से आंसू बहते हैं और बोलते हैं नाक से भी पानी आने लगता है, तो नाक से पानी आ रहा है, द सिक्रीशन कमिंग फ्रॉम द नोज इन द फॉर्म ऑफ टीयर, नेजोलेक्राइमल डक्ट, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टीयर इज फ्लोइंग फ्रॉम द मीडियल कैंथस, यहाँ से आंसू आते हैं, यहाँ वो फ्लो है भाई, आप अगर लेटे हो तो फ्लो उस तरफ चला जाएगा, अदरवाइज इट इज कमिंग थ्रू हियर, राइट। Actually punctal lacrimalis is directing the flow of tear, right? It is directing the flow of tear, and then these are two are the lacrimal duct भी बोल सकते हैं, इसको lacrimal canal भी बोल सकते हैं,
पंक्टा क्या है? पंक्टा मैंने कैसे याद रखा है? होल है, एक छेद है। पंक्टा क्या है? छेद है जिससे tear duct. Through this, it is reaching to the nasolacrimal duct, and this duct is opening into the nose. Nose में भी कहाँ? To the external wall of the nares. अब समझ में आया होगा आई थिंक आप लोग को। मैम ठीक है, सो दिस इज, हाँ बोलो प्रियंका। हाँ मैम, जब आंसू आते हैं तो लेक्राइमल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है या फिर उसका सक्शन कम हो जाता है, वो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट का? फिर से पूछो बेटा, क्या पूछ रही हो? मैम, जब आंसू आते हैं तो हाँ। ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है या फिर अदर हैंड वो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट का वो सक्शन कम हो जाता है जो आंसू निकलते हैं? नहीं, सक्शन इज नॉट एक्चुअली, क्या है, जब इंसान इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी फ्लो। भाई जो इमोशंस हैं, इमोशंस आर ऑल गवर्न्ड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। स्टिमुलेशन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब वहां पर इमोशंस आपने आए, टीयर देयर, द प्रोडक्शन ऑफ द टीयर इज देयर, बट मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो बच्चे ने मैम मीटिंग की। हाँ बोलो। मैम our class of LPM is at 11:50. अच्छा ठीक है, चलो मीटिंग लीव करते हैं। प्रियंका कल एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, कल तो सैटरडे है। मैं चाह रही थी एक टेस्ट रखने का, क्या टेस्ट रख ले Yes कल? ma'am, yes ma'am, yes ma'am, यस मैम। रख ले क्या टेस्ट, जितना अभी पोर्शन हो गया है? yes ma'am. मैम ठीक है। Nothing. हाँ हाँ नितिन, मैम उन क्वेश्चन, मैम अभी अपने जो टेस्ट और पेपर होंगे यूनिट 1 के, वो कहाँ तक सिलेबस आएगा? हाँ सिलेबस में कहाँ तक आएगा? अभी जो पेपर होंगे कहाँ तक आएगा पेपर में? Ma'am, you're not audible.